Hello everyone. This is your next part of the pillar 5C, which is part 3 we are doing. Let's start with the communication. Communication के अंदर हम आईटी सेक्टर 5G रेवोल्यूशन इन इंडिया देख लेते हैं. 5G स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी बैंड लो है, मिड बैंड है, हाई बैंड है. कवरेज एरिया लो का लार्जेस्ट अमंग थ्री, इसका मिडल और इसका स्मॉलेस्ट एरिया कवर करता है. मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, मिडल लेवल एंड 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड. ठीक है. Latency is the amount of time taken by the data to travel between its source and destination. ठीक है. 5G के अंदर बहुत कम लेटेंसी होती है, बहुत कम टाइम लेता है. 5G नेटवर्क बहुत तेजी से मैसेज डिलीवर कर देता है. नेटवर्क स्लाइसिंग, मोबाइल ऑपरेटर्स to create multiple virtual networks within a single physical 5G network. ठीक है. It is a mobile operator to create multiple virtual network with single physical 5G network which provide faster data to telesurgery in rural areas, driverless car, etc. ठीक है. 5G हैकाथॉन बाय डीओटी विच इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2020 में लॉन्च किया था 5G हैकाथॉन इन एसोसिएशन विद नीति आयोग, नीति, एमएसएमई मिनिस्ट्री, आईआईटीएस एंड अदर एकेडमिक एंड इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स. 5G ट्रायल स्टार्ट इन इंडिया 2021-22 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलाउ किया एयरटेल, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम एंड वीआई विच इज वोडाफोन आइडिया, MTNL to start 5G trials. ठीक है. इन सबको बोला गया था, अलाउ किया गया था to allow to start with the 5G trials. Following frequencies will be tested for 5G 3.2 गीगा जी. ठीक है. ये सारे के सारे जो भी हैं, इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज, ये तो हमें इतना डिटेल में जानने की नीड भी नहीं है. तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज टेस्ट की गई थी. Right of way for 5G. Right of way legal permission granted to telecommunication, electricity, water, gas companies to install and their infrastructure on mobile and private properties to operate their नेटवर्क. ठीक है. तो राइट ऑफ वे एक लीगल परमिशन ग्रांट की गई थी टेलीकम्युनिकेशंस को, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस कंपनीज को कि इंस्टॉल करें एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज टू ऑपरेट देयर नेटवर्क. नेक्स्ट है प्राइवेट इनिशिएटिव्स फॉर इंटरनेट. Starlink network project, Elon Musk का था, founder of Tesla, e-cars and SpaceX company, which aims to launch 12,000 internet providing satellite by 2027, and it will provide high speed and affordable internet at global level. Other similar initiative था Airtel OneWeb, Amazon के ऊपर जो है. ठीक है. Next है Aquila, Facebook project to use solar powered drones for delivering internet in remote areas. ठीक है. Although 2018 में company abandoned the project. Project Loon, Google company project to provide internet connectivity in remote and hilly location using helium balloons. ठीक है. रैंकिंग्स देख लेते हैं. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बाय सर्फशार्क, अ फॉरेन प्राइवेट सेक्टर टेक कंपनी to measure the internet speed, affordability, cyber security and government regulation. Then ranking given on each of these parameters, so poor cost benefit है. ठीक है. ये मेजर करने के लिए है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बाय सर्फशार्क, एक फॉरेन प्राइवेट सेक्टर टेक कंपनी है which measure internet speed, affordability, cyber security and government regulation. Then ranking given on each of these parameters, so poor cost benefit. While India in top 10 in terms of internet affordability, but speed reliability India में काफी poor है. Global Cyber Security Index by the International Telecommunication Union under United Nations. India given 10th rank in 2021 and we are ahead of China and Pakistan. E-Governance, E-Government Development Index, EGDI, since 2001, United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, has been publishing it every 2 years. ठीक है. हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है, which monitors the progress of e-government projects in the UN nations. MITI is the nodal ministry for India and India की rank है 105. ठीक है. As per 2022. Network Readiness Index, which is by the World Economic Forum with the help of some private organizations and universities. Draft Data Empowerment and Protection Architecture by Niti Aayog to protect personal data, digital privacy and cyber security. Clear? नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. इसके अंदर अगर हम कुछ अटैच्ड ऑफिसेस देखें तो वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पब्लिकेशन डिवीजन, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फोटो डिवीजन, न्यू इंडिया विंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर. ये सारे के सारे. ठीक है. स्टैचुटरी बॉडीज हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन विच इज फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल,
ठीक है, ये ट्रिब्यूनल बाद में रिमूव भी हो गया था। परासर भारती, ऑल इंडिया रेडियो 1936, दूरदर्शन 1959। परासर भारती का मोटो क्या है? बहुजान हिताया, हिटाया, बहुजान सिखाया। प्रसार भारती also operates India's only air free to air DTH platform. DD free Dish DTH is the largest distributed DTH platform. ये आपने सुना भी होगा, डीडी डिश, डीडी की जो फ्री डिश आती है DTH, ये एक लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड DTH है इन द कंट्री। ठीक है, इसके बाद है सीपीएससी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बीईसीआईएल। ठीक है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। एक्टिविटीज, दूरदर्शन अरुण प्रभा, which is a dedicated 24/7 TV channel for Arunachal, which is responsible for the National Film Award, Dada Saheb Phalke Awards, International Film Festival of India, which is jointly hosted by this ministry and state government of Goa. ठीक है, Himalayan Film Festival with Union Territory of Ladakh, Samvad, systematic assimilation of media views for decision making, which is an online dashboard for analyzing the news. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार, विच इज अ वीकली जर्नल रिलीज्ड एवरी सैटरडे सिंस 1976. प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विच इज कंपाइल्ड बाय अ पेरिस बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्टर सेंट फ्रंटियर। ठीक है, इसका इंडिया की आपको पता भी होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको पता है कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं। इंडिया की रैंक 142 है। नॉर्वे एंड फिनलैंड एंड डेनमार्क इज द टॉप 3। ठीक है, रेगुलेटर स्टैट्यूटरी सेंसर बोर्ड, Indian Cinematograph Act 1952, Central Board of Film Certification, which is commonly known as Censor Board. It is under the Ministry of Information and Broadcasting. ठीक है, नेक्स्ट हम इसका अमेंडमेंट बिल देख लेते हैं 2023 में जो आया है। पेरेंटल गाइडेंस फॉर चिल्ड्रन अंडर 12। ठीक है, 3 कैटेगरीज है। ये जो एज बेस्ड मार्कर्स है would be only recommendatory. It's left to parents to consider whether their children should view such a film. 3 कैटेगरीज होती है ना, 7+ स्टूडेंट्स देख सकते हैं, 13+, 16+ लोग देख सकते हैं, तो वो कैटेगरी। बाकी ये ऐसे कैटेगरी होती है कि भाई इतने लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये मूवीज वगैरह वगैरह। Less strict punishment for piracy. Strict punishment of minimum 3 month jail and fine of rupees 3 lakh, which can be extended up to 3 years jail and plus 5% production cost of film. Censor certificate valid for 10 years, which is lifetime and perpetual validity होती है। Communication Regulator Statutory Press Council of India, 1978 में आए, statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. Readers can complain against violation of press ethics. Press Council of India does not cover TV news channel, so we have, ठीक है, न्यूज चैनल नहीं कवर करते हैं, सो वी हैव डिजिटल न्यूज पब्लिशर लल्लन टॉप और कोबरा पोस्ट, आपने सुना भी होगा, डिजिटल न्यूज पब्लिशर है। 2022 में प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन सेटअप एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी Guidelines and Digital Media Ethics Rules 2021 provide for setting up such self-regulating body. दूसरा है न्यूज चैनल एनडीटीवी टाइम्स नाउ, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, which is a self-regulatory body set up by the news channel themselves, which punishes news channel if they spread misinformation, hate news, harm privacy of women by showing rape victim name, etc. ठीक है, Entertainment channel example Colors, Broadcasting Content Compliant Council BCC, which is a self-regulatory body set up as non-news general entertainment channel. 2011 punishes them for objectionable content. Over the top platform, OTT, of course, you guys are very much aware of this. Before they were regulated by the पहले कौन regulate करता था? MeTV. By 2020 नवंबर से their regulation is shifted to the Ministry of Information and Broadcasting. 2023 में TRAI does not have the power to regulate OTT platforms such as Disney Plus Hotstar, but this judgment given by TDSAT 2023 में. Notable laws about TV and ads. 1954 में Drugs and Magic Remedies Act prohibits advertising drug for cancer, diabetes, abortion. 1986 में indecent representation of women prohibition prohibits indecent representation of women in print media. 1995 में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट प्रोहिबिट्स स्पोर्ट्स गैम्बलिंग एटसेट्रा। ठीक है, स्पेस ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइम मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, ISRO हेडक्वार्टर बेंगलुरु में अगेन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो हैज 2 गवर्नमेंट कंपनीज, एंट्रिक्स और दूसरी कौन सी है? New Space India Limited NSIL, which is 2019 में आई, for the production of launch vehicles in collaboration with private sector players. Entrix helps foreign nations and companies to launch satellite with the ISRO's help. ठीक है, foreign nations और companies को help करता है कि वो satellite launch करे इसरो के help के साथ। ठीक है, ये वही दे रखा है प्राइम मिनिस्टर के अंदर 2 बॉडीज आ गई, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो। इसके अंदर 3 बॉडीज हैं, एंट्रिक्स हो गई 2 कंपनीज, न्यू स्पेस इंडिया और इन स्पेस।
एंट्रिक्स का काम है कि वो सेल करता है इसरो की सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज टू फॉरेन नेशंस को। न्यू स्पेस इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की यूज करता है टू बिल्ड लॉन्च व्हीकल्स। और इन स्पेस क्या करता है, लेट प्राइवेट सेक्टर यूज इंफ्रा, इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर। यूजिंग कार्टोग्राफी एंड जियोस्पेशियल डेटा टू ट्रैक डेवलपमेंट। कार्टोग्राफी क्या होता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेटिंग अ जोग्राफिकल एरिया ऑन अ फ्लैट सर्फेस, जैसे कि मैप में या चार्ट में। जियोस्पेशियल डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है जो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट और इवेंट को विद इन अ लोकेशन ऑन सरफेस। GSM3 इन्वेस्टमेंट मॉडल। Infrastructure investment development has to be done through PPP, BOT और BOO2 boot। नॉन पीपीपी है जैसे कि ईपीसी, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, गवर्नमेंट ओन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और एक मिक्सचर होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल फॉर हाईवे डेवलपमेंट, जिसमें पीपीपी नॉन पीपीपी तीनों। पीपीपी क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी कैन बी अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जैसे कि जीएमआर ग्रुप बिल्डिंग फ्रेश न्यू एयरपोर्ट्स इन हैदराबाद, या फिर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जैसे कि प्राइवेट कंपनी अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट एट दिल्ली एंड मुंबई। PPP can be done by government forming a joint venture 50-50 या फिर special purpose vehicle company with equity from public and private sector. It is done by government granting concession, lease, license, permit, a legal right to private company to design, develop, finance, construct, operate, maintain a greenfield, brownfield infrastructure asset. ठीक है। PPP के major types क्या है? As per Economic Survey 2023, design, build, finance, operate, transfer, rehabilitate, operate, transfer, hybrid annuity model, toll, operate, transfer model, build, operate, transfer with the two variants. देख लेते हैं बीओटी के टाइप। बीओटी टोल है और एक बीओटी एन्युटी है। पेमेंट कैसी होती है, प्राइवेट प्लेयर विल कलेक्ट फीस, प्राइवेट प्लेयर कलेक्ट करते हैं फीस फ्रॉम यूजर, और एन्युटी के अंदर गवर्नमेंट डायरेक्टली पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू प्राइवेट प्लेयर। इफ ट्रैफिक डिक्रीज एंड हु विल सफर प्रॉब्लम, तो प्राइवेट प्लेयर प्रॉब्लम सफर करेंगे और इसमें गवर्नमेंट सफर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी GIF 2004 में बाय वर्ल्ड बैंक टू हेल्प इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज विच प्रोवाइड रुपी टू एडवाइजरी टू डिजाइन PPP कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट अ सेकेंड, या ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 में आया ड्यूरिंग यूपीए राज, ठीक है। द रुपी फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट वर ट्रांसफर कर दिया इन दिस फंड टू फाइनेंस वेरियस स्कीम प्रोजेक्ट PSB रिकैपिटलाइजेशन, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF 2015, आउट ऑफ दिस रुपीज 40,000 करोड़ 49% फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, रिमेनिंग बाय, इतना पैसा यहाँ से आया फाइनेंस मिनिस्टर से, रिमेनिंग बाय द डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। SEBI registered NIIF as Category 2 Alternative Investment Fund. NIIF is a fund of funds, gives funding to other funds. Example 2017 में India and UK to set up Green Growth Equity Fund to finance green infrastructure projects in India. So from Indian side, NIIF invested money in GGEF. ठीक है। इंफ्रा फाइनेंस NIP NMP गति शक्ति, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में अगस्त बाय प्राइम मिनिस्टर, ओवर 100 लाख करोड़ वर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। 2019 से 20, 2024 से 25 के बीच का है ये, मतलब पूरा 5 साल जो है 2019 से 25 तक। दिस फंडिंग विल बी स्प्रेड अक्रॉस एनर्जी में 12%, रोड में 19%, अर्बन में 16%, रेलवे में 13%, इरिगेशन में 7%। सोर्स ऑफ फंडिंग इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, सेंटर 39% है, प्राइवेट से 21%, स्टेट 40%। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान बजट 2021 में आया टू मोबिलाइज मनी बाय अबव थिंग्स बाय सेलिंग एंड रेंटिंग गवर्नमेंट कंपनीज एसेट्स, गवर्नमेंट की कंपनीज के एसेट्स बेच के टू मोबिलाइज रुपीज 6 लाख करोड़ फ्रॉम 2020 टू 2021 टू 2024 टू 2025, ठीक है। गति शक्ति 2021 अगस्त में आया, नेशनल मास्टर प्लान वर्थ रुपीज 100 ट्रिलियन टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, स्पीड वगैरह इंप्रूव करने के लिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2021, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल और लीज एसेट्स इंक्लूडिंग रोड, रेलवे वैगन, रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन, टेलीकॉम टावर, जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये सारे के सारे गवर्नमेंट सोच रही है सेल करने के लिए, लीज करने के लिए। दीज एसेट्स विल बी सोल्ड और लीज इन द फॉलोइंग मॉडल, 3 तरीके से हो सकता है सोल्ड, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो हमने पढ़ा भी था पिलर 1C में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और एक है ऑपरेशन मैनेजमेंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। इसकी डिटेल में जाने की हमें इतनी नीड भी नहीं है। Niti tasked to prepare national monetization pipeline, that is how to accomplish above things in systematic manner. Target rupees 2.5 lakh crore. Out of them, majority will come via roads, railways, power and pipeline and telecom. ठीक है। PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान डिजिटल पोर्टल 2021 अक्टूबर में डिजिटल पोर्टल टू कनेक्ट 16 मिनिस्ट्रीज, रोड एंड हाईवे, रेलवे, शिपिंग, पेट्रोलियम गैस, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन। नोडल कौन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री। पोर्टल कौन सा डेवलप किया, भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन, किसने डेवलप किया है ये,
एंड जियो इन्फॉर्मेटिक जिसको बोलते हैं BISAG, विच इज ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी अंडर द मीटी मिनिस्ट्री. बेनिफिट इज फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल. गति शक्ति संचार पोर्टल टू हेल्प राइट अवे एप्लीकेशंस फॉर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर फॉर कंपनीज. Infrastructure Finance Secretariat, which falls under the Department of Economic Affairs, Finance Ministry के अंदर, encourage public-private partnership and more private investment in infrastructure. Public-private Partnership Appraisal Committee, Chairman Secretary, Department of Economic Affairs. Viability Gap Funding by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, to provide financial assistance to financially unviable but socially economically desirable PPP projects such as wastewater treatment, water supply, solid waste management, health and education sectors. India Infrastructure Project Development Fund Scheme. Aim is money for hiring consultant advisor to draft better quality of PPP project. Blueprint कौन है? BOSS, Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance. ठीक है, तो ये था आपका पिलर 5 जो कि यहाँ पे फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट पिलर जो अब हम करेंगे वो है पिलर 6. अब आपका ऑलमोस्ट 40 पेजेस बचे हैं जो भी हम अभी काफी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको.